CBS न्यूज और मैं आपके साथ तृष्णा। ये नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। गौरव गोगोई के कथित पाक कनेक्शन पर जांच की सिफारिश, रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि गोगोई वर्ष 2013 में अधिकारियों को बिना सूचना दिए गुप्त रूप से पाकिस्तान गए थे। मुख्यमंत्री ने आशंका जताई कि इस दौरान उन्हें किसी विशेष प्रकरण का प्रशिक्षण दिया गया हो सकता है। शर्मा के अनुसार गोगोई को केवल लाहौर का वीजा मिला था, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के बाद गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप से उन्हें इस्लामाबाद और कराची भी बुलाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि एक सामान्य नागरिक को पाकिस्तान में ऐसा विशेष स्वागत क्यों मिला। सीएम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान प्रवास के दौरान गोगोई करीब 10 दिनों तक डिजिटल साइलेंस पर रहे। हिमंत विश्व शर्मा ने गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई पर भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि एलिजाबेथ 2011 से 12 के दौरान पाकिस्तान में कार्यरत थी और उन्होंने कुल 9 बार पाकिस्तान की यात्रा की। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक अकील तौकीर शेख से उनके करीबी संबंध होने का भी दावा किया। मुख्यमंत्री के अनुसार असम सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद असम कैबिनेट ने केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की सिफारिश करते हुए पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है। और তেওঁ ৰিপৰ্টটো কাক দিয়ে? তেওঁ ৰিপৰ্টটো দিয়ে পাকিস্তানী নাগৰিক এলিজাবেথ কোলবান গগৈ। Now let us come to the next part of my presentation, who is Elizabeth Kolban Gogoi. Let us see. So Elizabeth Gogoi is a British citizen. By religion she is a Christian lady. So even after marriage to Gaurav Gogoi, she maintained her British citizenship as well as her own religion, Christianity. So nothing has changed. Gaurav Gogoi biya koruar pisot Elizabeth Gogoi nijor eku porichoy eri dia nai. Tekhet etiao British citizen and teo etiao Christian dharmot বিশ্বাস কৰে. Now Elizabeth Gogoi started her professional career with Senator Tom Udali of America. Now, who is Senator Tom Udali? That is also very interesting thing. After Bin Laden was captured and killed, America stopped all financial assistance to Pakistan. Now, there was a Senate committee where Tom Udali was the member, and Tom Udali recommended that America should restart financial aid to the Pakistan. So Tom Udali is a senator, he was a senator close to Pakistan, and Elizabeth was trained initially under Senator Tom Udali. We have documents to prove that Senator Tom Udali actually received lot of election donation from George Soros Foundation. So these are on record. We have next page, I have annexed all the links. So the Tom Udali George Sorosor pra toka paisile aru Pakistanok Amerikai nirantor sahay kori thakibo lage buli teo report disile Senateot. Bin Ladenok dhara porar pisot Amerikai Pakistanok toka dia bond korisile, and Senator Tom Udali restarted the financial collaboration with the Pakistan. So Elizabeth started her career with this gentleman called Tom Udali. Then let us come to her Pakistan trip. So Elizabeth joined Pakistan, lead Pakistan in March 18, 2011. March 18, 2011 tarikhe Elizabeth Kolban Gogoi came to Pakistan and joined there as a consultant. Aru jitu contract period asile
the contract period was from March 18 to March 17, 2012. 1 year contract. Teo dormaha kihot asile? Prothom 6 mah teo 2 lakh Pakistani toka loisile. Second 2 lakh 50,000 loisile. When we confronted her that whether you had a Pakistani account, she said, yes, I had a Pakistani account. We asked her whether you have closed it now. She refused to answer. So we have every reason to believe that that Pakistani account is still alive. But Gaurav Gogoi in his election affidavit has not mentioned about this Pakistani account. So Assam Police jetia koisile je apuni 2011 pra 2012 loike Pakistanot kam korisile mahot 2 lakh tar pisot 2.5 lakh ajir Indian money it will be 5 lakhs jo ei dormahar toka kot jamat hoisile bole moi Pakistani bank account ot jamat hoisilu ami khudisilu bank account eti ase ne nai she refused to answer tekhete amak uttor dibo khuja nasile. Now you see a interesting timeline. March 18, 2011 at Elizabeth joined Lead Pakistan. April 27, 11 she got an appointment letter from Lead India within 1 month. First March 18, 2011 she joined Lead India for 1 year, but April she got an appointment letter from Lead Pakistan. But the appointment letter is such that moi aji appointment dilu kina apuni join koribo 1 bochor pisot. तो लीड इंडिया तेक अपॉइंटमेंट दिले दे मैं आज से आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया हूं बट आपका ज्वाइनिंग डेट 1 साल का बाद. कहीं आपने सुना है ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर कि 1 महीना देते हैं, लेकिन उनको ज्वाइनिंग टाइम 1 साल दिया गया. क्यों? So that she can be groomed under Ali Tokir for 1 year. She had a valid appointment letter in India, but appointment letter was a very, very interesting that you will come to India after 1 year. Now, who says that send the appointment letter? Bhavna Luthra. So we asked Bhavna Luthra, how you met Elizabeth? Well, I don't know, I just send an appointment letter. Now, Bhavna Luthra says that Elizabeth was physically in Pakistan at the signing of the contract. She signed in India. And implication was laid down a preparatory timeline, which we can call training also under Ali Tokir Sheikh. जी गराकी मानुहे तेक अपॉइंटमेंट दिसे भावना लुथ्रा तेक केतियाओ एलिजाबेथक लगु पोৱা নাই. She just sent the appointment letter to Islamabad. Now appointment letter ki hol? Appointment letter diar pisot there was an agreement between Ali Tokir and Bhavna Luthra. Agreement khonot ki likhile je Elizabethor tumar tat Elizabeth ase but she will be managed by me. It is a part of the agreement. Bhavna Luthra and Ali Tokir, these are the parties. They signed the agreement saying agreement explicitly assigned Elizabeth Calderon the responsibility to build partnership, policymaker, research, civil society in India. Pakistan aru Bharator majot sukti hoise between Ali Tokir and Bhavna Luthra. Aru sei suktir adharot Elizabeth has been appointed in India. Aru what was the job of the Elizabeth? To enter into the civil society, policy makers and researchers. যে এই তিনিটা শ্ৰেণীৰ লগত Elizabeth will work. Now
ভাৱনা লুথৰাই আমি সুধিছিলোঁ যে why you signed this agreement with Ali Tokir. She gave us a statement. Lead India was brought under ambit of Lead Pakistan solely to facilitate Elizabeth's salary. যে এই এগ্ৰিমেণ্টখন যে হৈছিলে এই এগ্ৰিমেণ্টখনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল এলিজাবেথক দৰমহাটো যাতে পাকিস্তানৰ পৰা পায়। Second, FCRA permission was mobilized by Lead India to legalize Elizabeth's salary. এলিজাবেথে ইণ্ডিয়াত জইন কৰাৰ পিছত ग्रेटर नोएडा में 5 साल से चल रहा था धर्मांतर का मामला, 4 लोग हिरासत में। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे धर्मांतर के मामले का खुलासा हुआ है। सेक्टर 36 स्थित एक मकान के बेसमेंट में प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। आरोप है कि यह गतिविधि पिछले करीब 5 वर्षों से जारी थी। रविवार को भी यहाँ एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी, जिसकी सूचना हिंदू संगठन को मिली। सूचना मिलते ही बजरंग दल और हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के पहुंचते ही धर्मांतर से जुड़े लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 2 महिलाओं और 2 पुरुष समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार मकान नंबर B 224 में बेसमेंट के जरिए लोगों को ईसाई धर्म के प्रति प्रेरित किया जा रहा था। इस मामले में ग्रेटर नोएडा निवासी चंद्रकिरण और राजस्थान के रहने वाले सुरेश का नाम सामने आया है। छापेमारी के दौरान मौके पर 40 से 50 लोग मौजूद थे और एक कमरे से बड़ी संख्या में धार्मिक पुस्तकें बरामद की गई। एसीपी अरविंद कुमार ने बताया कि हिंदू संगठनों का आरोप है कि लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो खूब चर्च में जाओ, कौन मना कर रहा है? आज थाना बीटा 2 पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति थाने क्षेत्र के अक्षर में धर्म परिवर्तन कराने हेतु एकत्र हुए। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां 2 व्यक्ति कुछ लोगों के साथ उपस्थित थे, जिन्हें पूछताछ हेतु थाने लाया गया। एक ने अपना नाम सुरेश, मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला और वर्तमान में सिग्मा 2 में रहता है, तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम चंद्रकिरण और अक्षर का रहने वाला बताया। इस संबंध में थाना बीटा 2 पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में ढोल मंजीरा बजाकर जनता का अनोखा प्रदर्शन, सफाई व्यवस्था सुधारने की उठी मांग। उत्तर प्रदेश के कानपुर में खराब सफाई व्यवस्था के विरोध में लोगों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। दबोली वेस्ट वार्ड 72 के स्थानीय निवासी ढोल और मंजीरा लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने गलियों में रैली निकालते हुए नगर निगम, महापौर, विधायक और क्षेत्रीय पार्षद के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों के हाथों में लाल तख्तियां थी, जिन पर साफ सफाई की मांग लिखी हुई थी। प्रदर्शन के दौरान महापौर होश में आओ जैसे नारे लगाए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में कई वर्षों से सीवर ओवरफ्लो, जल भराव और टूटी सड़कों की समस्या बनी हुई है। नालियां जाम रहती है और कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठाया जाता। गंदगी और बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बेतिया में लोन वाली बाइक रोकना फाइनेंस कर्मी को पड़ा भारी। बीच सड़क पर महिला ने की सरेआम पिटाई। बिहार के बेतिया जिले से फाइनेंस कर्मी की सरेआम पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना कालीबाग थाना क्षेत्र के सुप्रिया सिनेमा के पास शनिवार दोपहर की है। आरोप है कि एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने लोन पर ली गई बाइक को बीच सड़क पर जबरन रोक लिया। वह बाइक सवार से बकाया किस्त को लेकर सवाल जवाब कर रहा था और कथित और पर दुर्व्यवहार कर रहा था। बाइक के पीछे बैठी महिला इस व्यवहार से भड़क गई। गुस्से में महिला ने फाइनेंस कर्मी का कॉलर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी।
घटना के दौरान करीब 1 घंटे तक सड़क पर हाईवे वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बाद में बीच बचाव कर मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि बाइक के पिछले 2 महीने से किस्त जमा नहीं हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। कालीबाग थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मी को सख्त चेतावनी दी है कि सड़क पर इस तरह जबरन वसूली या दबंगई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारण में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट। बंदूक की नोक पर ग्राहक और दुकानदार बने बंधक। बिहार के सारण जिले में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना मांझी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बाजार की है। जानकारी के अनुसार 2 बाइकों पर सवार 6 बदमाश दुकान पर पहुंचे। बदमाशों ने दुकान में घुसते ही पिस्तौल दिखाकर दुकानदार और ग्राहकों को बंधक बना लिया। 3 बदमाश दुकान के अंदर घुसे, जबकि अन्य बाहर निगरानी करते रहे। सीसीटीवी फुटेज में दिखा जा सकता है कि बदमाश हथियार के बल पर लोगों को डराते हुए बोरे में सोने चांदी के गहने भर रहे हैं। लुटेरे ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकान संचालक के अनुसार करीब 20 लाख रुपए के आभूषण और नकदी लूट ली गई। एक बदमाश ने पिस्तौल दिखाकर लॉकर खुलवाया और गोली मारने की धमकी दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान के लिए छापेमारी तेज कर दी है। पटना में क्रिकेट खेलते नजर आए आरजेडी विधायक ओसामा शहाब। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी विधायक ओसामा शहाब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिवान के रघुनाथपुर से विधायक ओसामा शहाब के क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पटना स्थित विधायक आवास परिसर का है। T20 वर्ल्ड कप के माहौल के बीच विधायक आवास के कैंप में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बैट और बॉल देखकर ओसामा शहाब खुद को रोक नहीं पाए और खेल में शामिल हो गए। कुर्ता पायजामा पहनने ओसाम शहाब ने सिर्फ बल्लेबाजी की, बल्कि सड़क पर फील्डिंग भी करते दिखे। उनका यह सहज और औपचारिक अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। विधायक बनने के बाद ओसामा शहाब अपने विधानसभा क्षेत्र रघुनाथपुर के साथ साथ पटना में भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि ओसामा शहाब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। उनकी मां हिना शहाब की राजनीति में सक्रिय रही है। ओसामा शहाब ने विदेश से कानूनी की पढ़ाई की है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत दर्ज कर विधायक बने हैं। वायरल वीडियो के जरिए उनका यह अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली के कई स्कूलों और संसद को बम से उड़ाने की धमकी। खालिस्तान के नाम पर भेजा गया ईमेल। दिल्ली के कई नामी स्कूलों और संसद को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल से हड़कंप मच गया है। ईमेल में लिखा गया है कि दिल्ली खालिस्तान बन जाएगा और 13 फरवरी को बड़ा धमाका किया जाएगा। धमकी देने वाले ने खुद को खालिस्तान नेशनल आर्मी का सदस्य बताया है। मेल में दावा किया गया है कि अफजल गुरु की याद में दोपहर 1:11 पे विस्फोट किया जाएगा। ईमेल के मुताबिक 9 फरवरी को स्कूलों में और 13 फरवरी को संसद में धमाका करने की बात की गई है। धमकी भरे मेल में संसद को हिंदू सनातनी पार्लियामेंट बताया गया है और मोदी, शाह व जयशंकर को खालिस्तान का दुश्मन कहा गया है। जिन स्कूलों में मेल मिला है उनमें लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल, कैब्रिजो स्कूल, वेंकटेश्वर स्कूल, बाल भारती स्कूल, एयरफोर्स स्कूल समेत कई नाम शामिल है। ईमेल मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और दमकल विभाग की टीमें स्कूलों में पहुंच गई और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि अब तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। शुरुआत की जांच में इन मेलों को फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है।
क्योंकि पहले भी इस तरह के धमकी भरे ईमेल सामने आ चुके हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है और ईमेल भेजने वाले कहीं पहचान के लिए साइबर जांच तेज कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है और मेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर जांच तेज कर दी गई है। विकासपुरी में दर्दनाक हादसा, बस में अगरबत्ती जलाकर सोया कंडक्टर, आग लगने से जिंदा जलकर मौत। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में देर रात एक भीषण हादसे में बस कंडक्टर की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हरियाणा नंबर की एक प्राइवेट बस अचानक आग का गोला बन गई। हादसे के वक्त 25 वर्षीय कंडक्टर सुनील बस के अंदर सो रहा था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि मच्छर भगाने के लिए जलाई गई अगरबत्ती से बस में आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस कुछ ही देर में धू धू कर जलने लगी। घटना का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रात के अंधेरे में बस जलती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद बस के अंदर से कंडक्टर सुनील का जला हुआ शव बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक यह बस महज 28 दिन पहले ही सड़क पर उतारी गई थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है। 26 जनवरी पर स्कूलों में पाकिस्तानी गीत का आरोप, यवतमाल में बवाल, बीजेपी नेता के दर्ज कराई शिकायत। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 26 जनवरी के एक स्कूल कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उमरेड नगर परिषद क्षेत्र स्थित अब्दुल गफूर शाह नगर परिषद उर्दू स्कूल का क्रमांक 2 में आयोजित स्नेह सम्मेलन के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तानी देशभक्ति गीत पर गायन और नृत्य किए जाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में ए मद ए मुजाद्दीन तेरी ललकार क्या है गीत प्रस्तुत किया गया, जिससे पाकिस्तान का सैन्य और देशभक्ति गीत बताया जा रहा है। आरोप है कि इस गीत पर छात्रों ने हाथों में तलवार लेकर प्रस्तुति दी। इस मामले को लेकर भाजपा नेता गोपाल कला ने उमरेड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इसे देश विरोधी कृत्य बताते हुए कहा कि किसी शैक्षणिक संस्था में इस तरह का कार्यक्रम देश की भावनाओं को आहत करता है। भाजपा नेता ने स्कूल प्रबंधक और शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर विरोध देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रक्रियाएं सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भोपाल, आवेश खान ने हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो की धमकी दी, बजरंग दल ने पकड़ा। भोपाल में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें आवेश खान नाम के युवक ने हिंदू लड़कियों को राजा बनकर प्रेम जाल में फंसाया और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। आरोपी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का रहने वाला है और 1.5 साल पहले भोपाल में बंगरोदा में एक फैक्ट्री में काम करने आया था। जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय एक लड़की ने आवेश की असलियत जानने के बाद बात करने से इनकार कर दिया। इसके बदले में आवेश ने लड़की को उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। जब आवेश लड़की के घर पहुंचा तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाओं ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस दौरान आरोपी की पिटाई भी हुई, जिसमें एक महिला ने चप्पलों से हमला किया। भोपाल के कटारा हिल्स थाना पुलिस ने आरोपी के मोबाइल में मिले अश्लील वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में FIR दर्ज कर चुकी है और आरोपी के क्राइम रिकॉर्ड व उसके संपर्कों की छानबीन कर रही है। घटना ने स्थानीय लोगों और संगठन में गहरी नाराजगी और सदमे की स्थिति पैदा कर दी है। इसी के साथ देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें और बने रहे MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।